Good morning students, welcome back to the class 12th subject Business Studies chapter Staffing. Today's topic is Training and Development. In this part we will learn about the methods of training. Method of training in last thing I have shared with you on-job method and off-job method. We have seen these two methods with a short description. On-job method means you work and learn along with it. It is considered as on-job method. Whereas off-job, you do not need to work. You have to learn first and then you have to go for the job. It is known as off-the-job. On-the-job means ऑन द जॉब आप काम करते हो, साथ साथ में सीखते भी हो. ऑफ जॉब मीन्स आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आप पहले ट्रेनिंग ले लो और ट्रेनिंग लेने के बाद में ही आप जॉब कर सकते हो. तो इस बेस में हम ऑन जॉब एंड ऑफ जॉब के बारे में पढ़ने वाले हैं. There are different methods and different techniques are available for on the job and off the job methods. First method is apprenticeship program. Apprenticeship program means in which a trainee goes under the guidelines of master worker. Master worker means who is expert in that particular field. He is working from many years. A new fresh talent person who go for apprenticeship program, he gets huge training in it. He is working under the one guider who guides him in every situation. It is known as apprenticeship program. Putting training under the guidance of master worker. For example, many people are in IIT field. In IIT field, they go for different sources like chemical engineering, then go for AC repairing, and many other different works they are doing. In this, if I give an example of an AC mechanic, the AC person who is an expert in IIT, but in theoretical term is good, but in practical he is not. So he is going under the guidance of a certain person who is already expert in the field of AC. He do every work in terms of repairing, servicing and everything which are required for AC mechanic. He knows everything. So as a person, as a trainee, as a fresh talent, I will be learning from him in detail, and after certain period of time I get an experience in that and I can become an expert on that particular field itself. It takes huge time. It can be taking more than 1 year, 2 years, 3 years, depending upon the learning. If the person is very low in learning, then it will take a huge time. But he is a quick creative person, he can learn very quickly. Next part is coaching. Coaching means supervisor guides and instructs the trainee as a coach. He can provide tasks to you. He can frame all the possible aspects in front of you. It's like a cricket coach. He do all analysis by every individual, what they are performing, what they are specialized, and they guide according to their specialization and make assure that the person who is working in the organization has to be worked very carefully and powerfully with the creative minds. तो यहाँ पर अगर हम लोग कोचिंग की बात करते हैं तो क्रिकेट में आप देखते हो तो बहुत सारे क्रिकेटर्स होते हैं जो अलग अलग स्पेशलाइज पर्सन होते हैं. तो उनको कोच इंडिविजुअली गाइड करता है, उनको टास्क देता है और टास्क देने के बाद में वो एक्सपेक्ट भी करता है कि परफॉर्मेंस प्रॉपर्ली हो, इसलिए वो परफॉर्मेंस अप्रेजल भी चेक करता है. तो उसी तरह कंपनी के अंदर भी एम्प्लॉयज को हम टास्क देते हैं, गाइड करते हैं और उनको टास्क भी देते हैं और चेक भी करते हैं एज अ कोच कि ये पर्सन काम परफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हम करते हैं. अगर उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर पाए तो मीन्स देयर इज अ गैप बिटवीन कम्युनिकेशन. तो यहाँ पर कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों चीज़ों की है, इंस्ट्रक्ट भी करना और गाइड भी करना और साथ में उसको अपने एनवायरनमेंट में फैमिलियर करना. Next part is internship. अब internship is a joint program of training in which educational institution and business firms are cooperated. अब यहाँ पर होता क्या है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो बिजनेस के साथ में टाई अप करती है. एज एंड व्हेन जब कैंडिडेट
उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में काम करता है तो उस इंस्टीट्यूशन के अंदर उसको सर्टन ट्रेनिंग मिलती है और उस ट्रेनिंग की प्रैक्टिस के लिए वो बिजनेस फर्म्स के अंदर जाके काम करता है और उसको सर्टन अमाउंट भी पे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गोइंग विद एग्जाम्पल, आई कैन गो फॉर CA। अब जब CA के लिए आप लोग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो चार्टेड अकाउंटेंट के लिए आपको ट्रेनिंग मिलती है। आप एग्जाम पास करते हो, एग्जाम पास करने के बाद में IPCC क्लियर करते हो, IPCC क्लियर करने के बाद में आप ट्रेनिंग में जाते हो। ट्रेनिंग जब आपका क्लियर होता है तो फिर जब क्लियरेशन होता है तो ऑडिट का एक पार्ट आता है CA के अंदर। उस ऑडिट के लिए एजुकेशनल फॉर्म बिजनेस फॉर्म के साथ कोलैबोरेट करती है और आपको एज एन ट्रेनी वहाँ पे जाके ऑडिट के बारे में सारी जानकारी लेनी होती है, ऑडिट करना पड़ता है और ऑडिट करने के बाद में आप फिर एग्जाम देते हो। तो उसी तरह से इंटर्नशिप होता है। नेक्स्ट पार्ट इज रोटेशनल जॉब। अब रोटेशनल जॉब क्या है? रोटेशनल जॉब मीन्स ट्रेनी को आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रेगुलर इंटरवल के बाद में शिफ्ट कर देते हो। शिफ्ट करने का मकसद यहाँ पर ये है, वन डिपार्टमेंट टू अनदर। इसका शिफ्ट करने का मकसद ये होता है कि जो कैंडिडेट आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, he should be expert in every department. Once he is familiar with the organizational department, उसके डिपार्टमेंट के अंदर वो जितना काम कर सकता है, फिर बाद में एनालिसिस होता है कौन सी जगह पे वो ज़्यादा पावरफुल है, कौन सी जगह पे वीकनेस में है, जहाँ पे उसको वीक पड़ता है इसको काम करने में। तो ऐसे सारे एनवायरनमेंट में जहाँ पे वो बेस्ट होता है, उस बेस्ट लोकेशन पे उसको लोकेट कर दिया जाता है। इन जॉब लोकेशन में एक प्रॉब्लम बोल सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है ये, क्योंकि इसके अंदर होता है क्या है, जितना जल्दी वो सीख लेगा उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा, लेकिन वो जितना स्लो सीखेगा उतना ज़्यादा डिफिकल्टीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने में। तो यहाँ पर जब हम लोग एक ट्रेनिंग को डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट शिफ्ट करते हैं तो इसके अंदर हम लोग स्वॉट एनालिसिस भी करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट बेस पे। तो कैंडिडेट जो है वो कैंडिडेट की पूरी डिटेल हम लोग चेक करते हैं कि कौन से एस्पेक्ट में बेस्ट है और कौन से एस्पेक्ट में नहीं। अगर वो एस्पेक्ट में बेस्ट है तो फिर उस हिसाब से उसको एडजस्ट किया जाता है। ये है आपका जॉब रोटेशन। अब हम लोग बात करते हैं ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब मतलब यहाँ पर अब आप काम नहीं कर रहे, आप पहले लर्निंग प्रोसेस में आते हो और लर्निंग प्रोसेस आने के बाद में आप एग्जीक्यूशन में जाते हो। तो यहाँ पर पहला है, मैंने पॉइंट लिखा है क्लासरूम लेक्चर और कॉन्फ्रेंसेस। क्लासरूम लेक्चर के अंदर जब हम लोग क्लासरूम लेक्चर की बात करते हैं तो क्लासरूम लेक्चर के अंदर क्या होता है, स्टूडेंट्स बैठते हैं, एक प्रोफेसर अंदर होता है, वो सारे कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है, प्रोसीजर्स बताता है, मेथड बताता है, उनका जॉब प्रोफाइल क्या है वो भी बताता है और साथ में उनको क्या क्या काम करना है वो भी उनको बताया जाता है इन ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग के अंदर आपको पूरा इंडक्शन करवा के दिया जाता है और इंडक्शन के साथ साथ में आपके जॉब प्रोफाइल के बेस पे भी डिस्कशन किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट है फिल्म। अब फिल्म कहाँ से है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना जो हम लोग देख के जल्दी समझ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे फिल्म का इस्तेमाल किया जाता है। Sometimes the audio visual clips are more attractive than the face communication. तो फेस कम्युनिकेशन के बेस पर भी हम लोग काम तो करते हैं क्लासरूम लेक्चर के बेस पे या कॉन्फ्रेंस के बेस पे, लेकिन जब फिल्म की बात आती है तो एक फिल्म के अंदर हम लोग सारा कैरेक्टर रखते हैं। कैरेक्टर रखने के बाद में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कौन कितना ज़्यादा बेस्ट हो सकता है और कौन सा एम्प्लॉय कितना बेनिफिट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये मोटिवेशन जैसा फिल्म बनाते हैं। फिल्म के अंदर आपको सारे एस्पेक्ट समझाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के और ऑर्गेनाइजेशन के एस्पेक्ट के बेस पे आपको काम करने की कोशिश, आपको काम करवाने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट इज केस स्टडी। एज यूजुअल आप 12th स्टैंडर्ड में आ गए हो, 11th स्टैंडर्ड में भी हम लोगों ने केस स्टडीज के रिलेटेड बहुत एस्पेक्ट किए थे। केस स्टडी जो होता है वो एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस बेस पे बनता है और रियल लाइफ बेस पे देखा जाता है कि कैंडिडेट कितना स्ट्रॉन्ग है केस स्टडी रीडिंग पे और कितना क्रिएटिव है अपने आइडियोलॉजीज के बेस पर। वो जितना पढ़ता है वो पढ़ने के बेस पे कितना अच्छे केस स्टडी कर सकता है और स्टडी करने के बाद में कौन से अल्टरनेटिव ऑप्शन ला सकता है, वो सब कुछ आपको ऑफ जॉब ट्रेनिंग में दिखाया जाता है, सिखाया भी जाता है। नेक्स्ट पार्ट इज कंप्यूटर मॉडलिंग। It is like a computer program in which the real aspects are being shown
जिसके अंदर पैसे की खर्चे नहीं होते, एक प्रोग्राम आपको खरीदना होता है, उस प्रोग्राम के बेस पे आपको जॉब लर्निंग सिखाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर सीखने के लिए अगर मैं जाता हूँ ट्रेनिंग के लिए, तो ट्रेनिंग के अंदर फोटोशॉप का एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। फोटोशॉप के अंदर कौन सा बटन कौन से ऑप्शन के लिए है, या फिर कौन सी चीज़ फोटो ग्रीन करती है, कौन से फोटो को एडिट कर सकती है, ये सब चीज़ें हम लोग सीखते हैं फोटोशॉप। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई आपको सिखाएगा नहीं कि ये क्लिक करने से आपका फोटो क्लीन होगा। तो बाय डिफॉल्ट ये एक तरह का मॉडल होता है, मॉडल में से एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। इस स्ट्रक्चर के अंदर आप जाके पूरा काम सीखते हो। सीखने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अगर आप गलती भी करते हो ना तो कंपनी को नुकसान नहीं होगा, लेकिन जब रियल वर्ल्ड के अंदर जब आप काम करते हो तो अगर आपसे एक गलती हो जाए तो कंपनी को लाखों का भी नुकसान हो सकता है, करोड़ों का भी नुकसान हो सकता है, डिपेंड करता है। बट कंप्यूटर मॉडल के अंदर आप अगर गलती करते हो तो एरर आएगा, उस एरर के बेस पे आप क्लियरिफिकेशन कर सकते हो, आप उसके अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप कंप्यूटर मॉडल में कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज रेसिप्रोकल ट्रेनिंग। रेसिप्रोकल ट्रेनिंग मीन्स इक्विपमेंट यूज। अभी मैं जो काम करने वाला हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम द एक्सपर्ट इन कीबोर्ड मास्टर। सो कीबोर्ड के अंदर मैं काम करूँगा तो कीबोर्ड के सारे फंक्शंस मुझे आने चाहिए। या फिर बाद में अगर मशीन की बात करते हैं तो कंपनी के अंदर जो बड़ी मशीन होती है ना, तो बड़ी मशीन के अंदर कौन सा स्टार्ट है, कौन सा क्लोज है, कौन सा सेटिंग आपको करना है, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं ऑफ जॉब ट्रेनिंग के अंदर, क्योंकि आप एक्सपर्ट बनने वाले हो उस पर्टिकुलर मशीन के। जब आप कंपनी में जाते हो तो कंपनी में जाके उस मशीन को स्टार्ट कैसे करना है, ऑफ कैसे करना है, उसके अंदर सेटिंग्स कैसे करनी है, वो आपको आनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि आपको इक्विपमेंट ट्रेनिंग दी जाती है। इक्विपमेंट ट्रेनिंग मतलब आपके पास मशीन है, मशीन की बात हम लोग करते हैं तो फिर बहुत सारी ऐसी मशीन है जो ऑटोमेटिकली सारा प्रोडक्ट बना के निकाल के देती है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट यू नीड टू पुट द रॉ मटेरियल, द फिनिश गुड्स विल कम विद द हेल्प ऑफ मशीन। सो कितना क्वालिटी, कौन सा क्वालिटी, कौन से टर्म में आपको चाहिए, वो सब कुछ आपको सेट करना आना चाहिए। तो एज एन जॉब ट्रेनिंग जब ऑफ जॉब ट्रेनिंग में जाते हो तो ऑफ जॉब ट्रेनिंग के अंदर आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो अगर आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ तो फॉर एग्जाम्पल एक नया सॉफ्टवेयर आया था SAP करके। SAP ये एप्लीकेशन एक फोरकास्ट एप्लीकेशन थी, लेकिन इसके लिए कंडीशन थी आप जो भी जॉब करते हो, मार्केट का करते हो, HR का करते हो, फाइनेंस का करते हो, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस कम से कम चाहिए। वो 2 साल का एक्सपीरियंस इसलिए मांगते थे कि SAP के अंदर जब फोरकास्ट करते हो तो आपका एक्सपीरियंस उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। तो इसमें क्या होता था, आप SAP के थ्रू, SAP एक आपका इक्विपमेंट यहाँ पे है, आप समझ लो, आपने एक एनालिसिस किया है कि आप 2 साल के बाद में आपकी ऑर्गेनाइजेशन 4 गुना फायदा करेगी, 2 गुना फायदा करेगी। ये फोरकास्ट फिर बाद में चेक भी किया जाता है ऑटोमेटिकली विद सेल्फ जो होता है वो ऑटोमेटिकली ही दिखा देता है कि आपने जो 2 साल पहले प्रेडिक्ट किया था वो कितना स्टैंड बाय है या कितना एक्यूरेट चल रहा है, वो सब कुछ SAP ऑटोमेटिक करता है। सिर्फ जस्ट यू नीड टू एंटर द डिटेल इटसेल्फ। नेक्स्ट पार्ट इज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। अब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है एग्जैक्टली? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एक तरह का ट्रेनिंग होती है जो आपको पूरा ट्रेन किया जाता है, आपको बताते हैं, स्किल्स दिखाते हैं, फिर बाद में बहुत सारे लर्निंग एस्पेक्ट आपको दिखाए जाते हैं, और लर्निंग एस्पेक्ट के बाद में आपसे पूरा जो एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट किया है उस क्रिएटेड एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें वो आपको सिखाते हैं वो सारी की सारी चीज़ें टेस्ट के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद में आपको फिर सूटेबल जॉब के लिए भी अपॉइंट कर देते हैं। तो ऑफ जॉब एंड ऑन जॉब में फर्क इतना है कि ऑन जॉब में आप काम करते करते सीखते हो, ऑफ जॉब के अंदर आपको कोई जॉब करने की जरूरत नहीं है, आप स्पेशल ट्रेनिंग के लिए जाते हो। तो यहाँ पे ट्रेनिंग अलग अलग मैथड्स में है। मोस्ट ऑफ टाइम क्लासरूम लेक्चर, केस स्टडी, फिल्म, ये 3 एस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद में लास्ट में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इक्विपमेंट्स का जो होता है, इक्विपमेंट यूज जो होती है वो नई टेक्नोलॉजी आने पर किया जाता है। कंप्यूटराइज्ड मॉडल ये एकदम फ्रेश टैलेंट अगर कोई बंदा आ रहा है या फ्रेश एम्प्लॉय अगर आता है तो उसके लिए बनाया जाता है प्रोग्राम। केस स्टडी आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि केस स्टडी के अंदर आपको एक एक पॉइंट को भी बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पे बनता है केस स्टडी। तो उसके ऊपर आपका जो जवाब भी होगा वो भी एक एक्सपर्ट जैसा ही होना चाहिए।
That's it for today. Thank you.